If you are taking mocks and do not see any improvement that you expected, then my dear student, you need to see whether you are analyzing the mock test properly or not. You all need to know that mock tests do not improve your score. The mock test analysis does. Hello my dear students, I hope you guys are doing well and preparing for your exams with full vigor and vitality. I welcome you all on this amazing platform of PW CLAT in this insightful video. If you are taking mocks and do not see any improvement that you expected, then my dear student, you need to see whether you are analyzing the mock test properly or not. You all need to know that mock tests do not improve your score. The mock test analysis does. And in this video, we'll be talking about how to analyze your mocks properly to improve your scores. Today, this video will be making mock test analysis easy for you, where you can turn every test into a score booster. So let's get started with the right approach. सबसे important चीज, don't jump to the score. Build the learner's mindset. ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है. बहुत सारे बच्चे मॉक टेस्ट देते हैं, उसके बाद अपना स्कोर चेक करते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ उस स्कोर को कंपेयर करते हैं, एक दो दिन डिप्रेस्ड रहते हैं, एंशियस रहते हैं, एंड देन दे मूव ऑन टू द नेक्स्ट मॉक टेस्ट. दिस इज नॉट व्हाट यू हैव टू डू. Okay, comparison is not going to help you at all, and my dear students, comparison kills joy. So remember that all you need is a good analysis and rectification, and today we'll be learning that. The real game lies in understanding why that number appeared. You need to shift your focus from marks to patterns. You all need to ask yourself, where did I hesitate? What kind of passages make me anxious? What question types trigger silly errors? And the goal is going to be building awareness of your test-taking behavior. My dear students, that is your hidden syllabus. The first important cheese, do not stick to the score always. Right? Next important cheese. अब हमारे पास आता है जो भी आपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं. नाउ यू हैव टू कैटेगराइज एवरी क्वेश्चन. नाउ यू विल बी टर्निंग दैट chaos into data, right? How can you do this? If you have got a question correct, okay, you need to ask yourself, what was my confidence level? Was I sure or was it just a calculated guess? अगर आपका क्वेश्चन नंबर 2 इंग्लिश से है और वो आपका करेक्ट हो जाता है और आपको पता चलता है अरे ये तो सिर्फ एक गेस वर्क था, then my dear student, it is a lucky hit. You need to work on that aspect. अगर कोई क्वेश्चन आपका इनकरेक्ट हो जाता है और इनकरेक्ट होने पर आपको पक्का पता है ये मतलब मुझे ऐसा फील हो रहा था यही आंसर है, राइट, यू आर श्योर अबाउट दैट, और वो गलत हो जाता है, तो नाउ यू हैव टू सी द रीजन क्यों गलत हुआ. क्या आपने क्वेश्चन को अच्छे से नहीं पढ़ा, पैसेज को अच्छे से नहीं पढ़ा, आप ग्राउंड्स ऑफ एलिमिनेशन में फंस कर रह गए, कॉम्प्रिहेंशन ट्रिकी हो गया है आपके लिए, क्लोज कॉल्स आपको नहीं आती है, या कंसेप्ट क्लैरिटी की कमी है, राइट. अगर कोई क्वेश्चन आप स्किप कर देते हैं तो आपको देखना है कि क्यों स्किप किया है. टाइम मैनेजमेंट के वजह से क्वेश्चन रह गया है, या फिर आपने वो जानकर छोड़ दिया है क्योंकि आपको आता नहीं है, या फिर इट इज टू लॉन्ग, दैट इज व्हाई यू लेफ्ट इट. दिस डेटा इज फॉर सेल्फ अवेयरनेस, ताकि आप इंप्रूव कर सकें. दिस इज गोइंग टू बी द फाउंडेशन फॉर इंटेलिजेंट इंप्रूवमेंट, माय डियर स्टूडेंट्स. नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप ओवर इज गोइंग टू बी, you need to diagnose your errors. You need to find the root cause. अभी मिस्टेक्स पता चल गई हैं, राइट, अब एरर्स निकालना बहुत जरूरी है. ओके, अगर आपके कंसेप्चुअल एरर्स हैं तो आपको देखना है आपको रूल नहीं आता है, प्रिंसिपल नहीं आता है, फॉर्मूला नहीं आता है, या फिर अगर लीगल में है तो आपने कोई लीगल प्रिंसिपल कहीं और जगह अप्लाई कर दिया है, या आपने जो वो क्वांट की रेशियो है यू हैव मिसअंडरस्टूड दैट. अब कर क्या सकते हैं, हाउ टू फिक्स इट. अब आपको वो कंसेप्ट यहां पर रिवाइज करना पड़ेगा अपने नोट से, अपनी वीडियो से, उससे रिलेटेड 5 से 10 क्वेश्चन सॉल्व करिए, राइट, ताकि यू कैन सील दैट गैप. नाउ द नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट, जो आपकी सिली और केयरलेस एरर्स होते हैं, ये क्यों होते हैं? मे बी यू हैव मिसरेड डेटा, या फिर यू हैव स्किप्ड अ लाइन,
ओके, या फिर आपको ऑप्शन सी चूज करना था, आपने गलती से ऑप्शन डी चूज कर दिया है, राइट? तो नाउ यू हैव टू प्रैक्टिस माइंडफुल रीडिंग। ओके, यू नीड टू फोकस ऑन मैपिंग। ठीक है, आप कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना शुरू करो, आप हाईलाइट करना शुरू करो उन्हें, ताकि ये आप इजीली कर सके। बहुत बार क्या होता है, जब आप एग्जाम हॉल में जाते हैं आप बहुत ज्यादा प्रेशर में होते हैं, क्योंकि अभी तक आपने मॉक टेस्ट दिए हैं अपने घर पर बैठकर, बट जब आप रियल टेस्ट के लिए जाते हैं वो क्लासरूम सेटिंग ही बहुत सारे स्टूडेंट्स को केओटिक लगती है, जिसके वजह से स्ट्रेस, एंजाइटी पाइल अप होना शुरू हो जाता है, राइट? तो माय डियर स्टूडेंट्स, जो पहले के 10-15 मिनट है, काम डाउन होकर कंपोजर के साथ रीड करो, तभी हेल्प हो पाएगी। अगर आप उसके अंदर यू आर गोइंग टू रेस विद योर हार्ट एंड योर माइंड, देन यू आर गोइंग टू बी इन ट्रबल। Now the next is strategic errors, right? My dear students, देखो बहुत सारे बच्चे पता है क्या करते हैं, वो जो ये टफ क्वेश्चंस होते हैं वो उनको पहले अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बेसिक माइंड से टफ पहले कर लेंगे, इजी का टाइम बच जाएगा, कर लेंगे, एंड नाउ यू हैव गॉट स्टक, जिसके वजह से टाइम निकल गया है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आप एक अच्छा सा ऑर्डर सेटअप कर सकते हैं एग्जाम को अटेम्प्ट करने का। बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है पहले लॉजिकल रीजनिंग करना चाहिए या पहले उनको लीगल करना चाहिए, बट मैं अपने पर्सपेक्टिव से बताऊं, सबसे पहले जाकर करंट अफेयर्स करो, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो आप घर से पढ़कर आते हो। यहां पर स्टैटिक भी होता है आपके पास और कंसेप्चुअल तो है ही, राइट? तो उसको सॉल्व करने में आपको 15 से 20 मिनट लगेंगे। फिर आप लीगल सेक्शन उठाओ, क्योंकि बच्चों को वो ट्रिकी भी लगता है और उसमें यू हैव टू रीड ऑल्सो, राइट? अब लीगल सेक्शन करने के बाद ये भी मेमोरी बेस्ड है। अब आपका करंट अफेयर्स और आपके पास लीगल सेक्शन हो गया है। अब जब तक आप इंग्लिश पर आओगे और लॉजिकल पर आओगे, आपकी एक अच्छी स्पीड बन चुकी होगी रीडिंग की, राइट? बहुत सारे बच्चे जब सीधा इंग्लिश से स्टार्ट करते हैं तो उनकी वो एक इतनी अच्छी स्पीड नहीं होती है, जिसके वजह से ज्यादा टाइम लगता है, राइट? वो टाइम मैनेजमेंट की एक बहुत ही अच्छी स्किल है ये, जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है, राइट? सबसे पहले आप उठाइए अपना करंट अफेयर्स, फिर आप लेकर जाइए लीगल के बाद इंग्लिश लॉजिकल में से कोई भी एक, एंड देन यू कैन चूज क्यूटी। ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है, राइट? बाकी अपने टाइम का भी ध्यान रखिए। ओके, नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट्स इज गोइंग टू बी, आप ये देखो कि कितना टाइम लग रहा है आपको, कितने मतलब कौन से क्वेश्चन में, राइट? बहुत सारे स्टूडेंट्स को ना यहाँ पर मेजर प्रॉब्लम होती है, वो टाइम ट्रैप्स में फंस कर रह जाते हैं। इंग्लिश का जो सेक्शन है, जहाँ पर आपके पास 4 पैसेजेस हैं, 24 क्वेश्चन है, एक पैसेज से 6 क्वेश्चन आ रहे हैं, उसमें आपको 5 से 6 मिनट टाइम लगना चाहिए। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 25 मिनट, ठीक है, 20 to 25 मिनट्स के बीच में पैसेज रीड भी करना है, क्वेश्चंस को भी आंसर करना है, और इसके लिए आपको चाहिए एक बहुत अच्छी रीडिंग हैबिट। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को बोला है कि अपनी रीडिंग पर मिनट एक बार स्पीड निकालिए। आपकी अब इस टाइम पर स्पीड होनी चाहिए 150 वर्ड पर मिनट से ज्यादा, तभी आप एग्जाम में अच्छा कर पाएंगे, अदरवाइज यू आर गोइंग टू फॉल्टर। और जो ये स्पीड आपको निकालनी है ये एवरेज रहने वाली है। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, जब मैं बोलती हूँ रीडिंग स्पीड, इसका मतलब ये नहीं है कि 1 मिनट में आप कितने शब्द पढ़ पा रहे हैं, नो इसका मतलब है 1 मिनट में आप कितने शब्द समझ पा रहे हैं। कॉम्प्रीहेंशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इंग्लिश सेक्शन में 30 to 35 मिनट्स लग रहे हैं अभी। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आप अपने आप को उतना रिफाइन कर पाओगे। बेटा एक चीज ध्यान रखो, CLAT is not going to give you any question और पैसेज जो शायद आपने कभी पहले सॉल्व ना किया हो, बिकॉज आप वो सभी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, टाइप्स ऑफ पैसेजेस सॉल्व कर चुके हैं, आपको अप्रोच पता है, आपको बस कंपोजर के साथ वहां पर टैकल करना है। और ये एग्जाम के अंदर बच्चों को ज्यादा डिफिकल्टी इसीलिए हो रही है क्योंकि यहाँ पर रीडिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है और स्टूडेंट्स रीडिंग से कतराते हैं। यू हैव टू इन्वॉल्व योर सेल्फ इन डाइवर्सिफाइड रीडिंग, एंगेज विद अ वेराइटी ऑफ टेक्स्ट। ठीक है, जब भी आप टाइम ट्रैप्स में फंस कर रहे तो बेटा यहाँ पर आप देखो कि आपको कितना टाइम लग रहा है किस क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, देखो, यूज अ क्विक 3 signal अप्रोच व्हाइल अटेम्प्टिंग। इजी, सॉल्व नाउ, मॉडरेट, मार्क फॉर रिव्यू, हार्ड, स्किप, कम बैक इफ टाइम अलाउज। ये वो स्ट्रैटेजी है जो टॉपर्स यूज करते हैं, जिसके वजह से एक्यूरेसी इंटैक्ट रहती है। ओके, नेक्स्ट अब हमारे पास रहने वाला है
सेक्शन वाइज, टॉपिक वाइज एनालिसिस, जहां पर आप अपने वीक लिंक्स को निकालते हो। जैसे इंग्लिश के अंदर मेरी एक्यूरेसी 80% है, 25 मिनट्स मुझे लग रहे हैं। डोमिनेंट मिस्टेक मेरे को एलिमिनेशन एरर्स में हो रही है। जो मुझे टॉपिक रिवाइज करने हैं वो टोन, फिगर्स ऑफ स्पीच। अब देखो यहां पर आप मॉक टेस्ट भी देते हैं, सेक्शनल टेस्ट भी देते हैं। बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है वो सेक्शनल टेस्ट में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं बट मॉक टेस्ट में नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वहां पर प्रेशर ज्यादा है और बाकी सभी सेक्शंस भी हैं। तो आपकी जो ये मिस्टेक्स हैं ये डिफर कर सकती हैं। अब ये आपको देखना है आप सेक्शनल में क्या गलतियां कर रहे हैं, मॉक टेस्ट में क्या गलतियां कर रहे हैं। ओके, ऐसे ही लॉजिकल रीजनिंग 70 to 75% एक्यूरेसी है, 30 मिनट्स लग रहे हैं। मेजर प्रॉब्लम मिस रीडिंग, या आपको समझ में नहीं आ रहा है। यहां पर फिर आपको देखना है आपको किस चीज की प्रैक्टिस करनी है, पैरेलल रीजनिंग की करनी है, स्ट्रेंथनिंग वीकनिंग की करनी है। ओके, नेक्स्ट लीगल रीजनिंग के अंदर अगर आपकी 85 है, 90% एक्यूरेसी है, टाइम लग रहा है 30 to 40 मिनट्स। डोमिनेंट मिस्टेक वही कंसेप्चुअल, टॉट से रिलेटेड, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, देन यू हैव टू रिवाइज इट। ओके, ऐसे ही करंट अफेयर्स जीके 90% एक्यूरेसी है, 20 मिनट्स लग रहा है। मेजर प्रॉब्लम है ये रिकॉल करने में दिक्कत हो रहा है, राइट। अब आपको देखना है किस तरीके के क्वेश्चंस में, एनवायरमेंट बेस्ड है, अवार्ड्स है, नेशनल सिक्योरिटी डेटा से रिलेटेड कुछ है, राइट। ऐसे ही क्वांटिटेटिव टेक्निक्स में अगर आपकी एवरेज मानकर चलते हैं 70 to 75% है, 15 से 20 मिनट लग रहे हैं। मेजर प्रॉब्लम वही कंसेप्चुअल है जहां पर आपको डेटा इंटरप्रिटेशन आता नहीं है, तो आपको उस चीज पर यहां पर पर्टिकुलरली फोकस करना है। ये अगर आप ऐसे एनालिसिस करेंगे तो ज्यादा चांसेस है इंप्रूवमेंट के, क्योंकि अब आपको अच्छे से पता है कहां मिस्टेक्स हो रही हैं, राइट। नेक्स्ट, नाउ बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं मॉक टेस्ट देने के बाद एक बार उसको दोबारा देने की कोशिश करते हैं, राइट। ये एक सीक्रेट वेपन की तरह है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को हेल्प कर चुका है, राइट। 48 आवर्स या फिर 72 आवर्स के बाद बच्चे दोबारा सेम मॉक टेस्ट सॉल्व करने की कोशिश करते हैं अनटाइम्ड, और फिर वो देखते हैं कि जो मिस्टेक्स उन्होंने पहले की हैं वो अब नहीं हो रही हैं, राइट। अब ये हुआ कैसे? नाउ योर ब्रेन गेट्स टू रीवायर इट्स अप्रोच विदाउट स्ट्रेस, विच इज इंपॉर्टेंट। योर गोल इज 100% एक्यूरेसी ऑन द सेकेंड अटेम्प्ट। इसके वजह से मसल मेमोरी क्रिएट होगी जो आपके रीजनिंग पैटर्न को भी स्ट्रेंथन करने वाली है और आपकी कंसेप्चुअल रिटेंशन को भी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। बाकी एक वीकली रिफ्लेक्शन रिचुअल जरूर बनाइए जहां पर बैठकर एक हफ्ते में अगर आपने 4 मॉक टेस्ट दिए हैं, आप उन चारों मॉक टेस्ट को निकालो, अपने एरर लॉग को निकालो और देखो कि क्या आप वो सेम मिस्टेक्स दोबारा कर रहे हैं। यू हैव टू आस्क योरसेल्फ, एम आई रिपीटिंग द सेम टाइप्स ऑफ मिस्टेक्स? Which section improved most this week? And next is, what's my one key goal for the next mock test? अगर आप इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर अच्छे से कर पा रहे हैं, then that's it. You are going to do well. अब बहुत सारे बच्चे एनालिसिस करने के बाद भी थोड़ा सा डिली डालिंग एटीट्यूड दिखाते हैं, पोस्टपोन करते रहते हैं सभी चीज़ों को, राइट। Procrastination is not going to help. You need to improve yourself if you are looking forward to joining your dream NLU. बेटा, एक अच्छा एनालिसिस आपको एक कदम आगे लेकर जाता है अपने ड्रीम एनएलयू के, और ये एक राइट अप्रोच है जो आपको हेल्प करने वाली है। इफ देयर इज एनीथिंग यू विश टू आस्क फ्रॉम दिस, प्लीज पुट इट इन द कमेंट सेक्शन, वी विल गेट बैक टू यू। दैट इज गोइंग टू बी ऑल. Do well in the mock test and then analyze for sure. Bye bye. Take care.